Friends, I'm Rajnikant. Welcome you to my YouTube channel Sumant Digital English Tutorial Videos. Dear guys, today I'm going to upload the third part of the first lesson of Intermediate English from the book Flamingo, the last lesson penned by Alphonse Edard. Let's begin with the text. After the grammar, we had a lesson in writing. तो ग्रामर के बाद हमने लेखन में एक पाठ प्रारंभ किया. That day M. Hamel had new copies for us, written in a beautiful round hand, France Alsace. उस दिन मिस्टर एम हैमल हमारे लिए नई कापियाँ लाए थे और जिनमें सुंदर कर्सिव लेटर्स में लिखा हुआ था फ्रांस अल्सास. कहने का अभिप्राय यह है कि उस पुस्तक को देखने के बाद ऐसा लगता था जैसे कि पैट्रियटिज्म की भावना डेवलप हो रही हो. They looked like little flags floating everywhere in the classroom, hung from the rod at the top of our desks. वे छोटे छोटे श्वेत झंडों की तरह हर जगह पूरी कक्षा में तैरते हुए दिखाई दे रहे थे, जो कि डेस्क के ऊपर की रॉड पे लटके हुए थे. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. आपको देखना चाहिए था कि किस तरह से हर एक आदमी काम में जुट गया और यह भी देखना चाहिए था कि उस दिन कक्षा में कितनी शांति थी. The only sound was the scratching of our pens over paper. केवल एक ही ध्वनि उत्पन्न हो रही थी और वो थी कागज पर पेन के रगड़ने की आवाज. Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them. Not even the little ones who worked right on tracing their fish hooks as if that was French too. तो एक समय में कुछ भंवरे अंदर आ गए, लेकिन किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया. यहां तक कि छोटे बच्चों ने, जो कि केवल फिश हुक्स की ड्राइंग कर रहे थे, यानी मछली पकड़ने की कटिया का चित्र बना रहे थे, मानो कि वो भी फ्रेंच ही हो. On one rod, the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make sing in German, even the pigeons? तो on the roof, छत के ऊपर, pigeons cooed very low, कबूतरों के बड़े धीमे धीमे स्वर में कूकने की आवाज आ रही थी. And the little French thought himself, और लिटिल फ्रेंच ने अपने आप में सोचा कि whether they would make them sing in German even to the pigeons. तो नन्हे फ्रेंच के मन में ये ख्याल आया कि जैसे हम लोगों को वो जबरदस्ती फ्रेंच पढ़वाना चाहते हैं, क्या वो कबूतरों को भी जर्मन में गीत गाने के लिए बाध्य कर पाएंगे. Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom.
जब कभी भी हमने राइटिंग से, लेखन से नजरें उठाकर ऊपर देखा तो मैंने देखा कि मिस्टर एम हैमेल अपनी कुर्सी पर बिना हिले डुले बैठे हुए हैं। पहले किसी चीज को देखते हैं, इसके बाद फिर किसी दूसरी चीज को देखते हैं, मानो कि वे इस क्लासरूम की हर चीज को, हर छोटी चीज को अपने दिमाग में फिक्स कर लेना चाहते हो। फैंसी, for 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him, just like that. है ना अत्यंत आकर्षक बात कि पिछले 40 सालों से वो उसी जगह पे रहे थे और खिड़की के बाहर उनका बगीचा था और उनके सामने उनकी क्लासरूम थी। ठीक उसी तरह से पिछले 40 साल रहे थे। Only the desks and benches had been worn smoothly. The walnut trees in the garden were taller, and half vine that he had planted himself twined about the windows to the roof. केवल कुछ मेज और कुर्सियां घिस घिस के चिकनी हो गई थीं। बगीचे में वैलनट का ट्री अपेक्षाकृत लंबा हो गया था और एक प्रकार की लता जिसका नाम होप वाइन है, जिन्हें उन्होंने खुद अपने हाथों से लगाया था, वो खिड़की से लिपटते हुए छत तक पहुंच गई थी। How it must have been broken his heart to leave it all. Poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country the next day. तो इन सबको छोड़ने से उनका दिल तो टूटना ही था। बेचारे वो कमरे के ऊपर छत पर अपनी बहन के चलने की आवाज़ें सुन रहे थे, जो कि उनके संदूकों को पैक कर रही थी। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री द नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले दिन उनको तो देश छोड़ ही देना था। All at once in church clock struck 12. Then the Angelus, and the same moment the trumpet of the Prussians returning from the deal sounded under the window. M. Hamel stood up with pale in his chair. I never saw him look so tall. Excuse me, let's see the text again. But we had the courage to hear every lesson to the very last. लेकिन हम लोगों में इतनी हिम्मत थी कि हम हर पाठ को बिल्कुल अंत तक सुन सकते थे। आफ्टर द राइटिंग वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री एंड देन द बेबी चैंटेड देयर बा बेबी बो। तो लिखने के बाद हम सब लोगों ने इतिहास का एक पाठ लिया और फिर छोटे छोटे बच्चों ने
बाबे बी बोबू, इसको दोहराया। यानी जैसे हम अपनी अपनी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट्स को दोहराते हैं, उसी तरह से फ्रेंच की अल्फ़ाबेट है बाबे बी बोबू। Down there at the back of the room, the old Hasser had put his spectacles and folding his primer in both hands, spelled the letter with them. और वहीं पर कक्षा में पीछे की ओर बैठा हुआ बुढ़ा हासर भी, उसने अपने चश्मों को लगा लिया था और अपने प्राइमर को अपने दोनों हाथों में ले करके वो भी छोटे छोटे बच्चों के साथ उन लेटर्स को स्पेल कर रहा था, उन लेटर्स की स्पेलिंग पढ़ रहा था। You could see that he too was trying. His voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Ah, how well I remember it, the last lesson. तो डियर गाइस, आप ये देख सकते थे कि वो भी अपनी आवाज में चिल्ला रहा था और संवेदना से कांप रहा था। देखने में उसको सुनकर देखना बड़ा अच्छा लग रहा था और हम सभी हंसना और चिल्लाना चाहते थे। और हम लोगों ने आखिरी लेसन को कितने अच्छे से रिमेंबर किया। All at once the church clock struck 12, then the Angelus. अचानक चर्च की घड़ी ने 12 बजाए और फिर एंजेलस प्रार्थना की घंटी बजी। At the same moment, the trumpets of the Prussian returning from the drill sounded under our windows. ठीक उसी समय जर्मन सैनिकों के अभ्यास से लौटने के ट्रम्पेट की आवाज हमारे खिड़की के नीचे से अंदर आई। M. Hamel stood up very pale in his chair. मिस्टर M. Hamel अपनी कुर्सी पर खड़े हुए, उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। And I never saw him look so tall. और मैंने तो उन्हें कभी इतना लंबा नहीं देखा था। My friend said he said, उन्होंने कहा कि my friends, मेरे मित्रों, I, मैं। But something choked him. लेकिन कोई न कोई चीज उनके गले में रुध गई। He couldn't go on. वो आगे बोल नहीं सके। Then he turned to the blackboard. फिर वे श्यामपट की ओर मुड़े। Took a piece of chalk. चाक का एक टुकड़ा उठाया। And bearing on with his might, he wrote as large as he could. और अपनी समस्त शक्ति को बटोरकर उतना बड़ा बड़ा लिखा जितना कि वो लिख सकते थे। विवे ला फ्रेंच। और उन्होंने लिखा विवे ला फ्रेंच मीन्स फ्रांस जिंदाबाद। Then he stopped and leaned his head against the wall. फिर वो ठहर गए और उन्होंने अपने सर को दीवार से टिका लिया। Without a word, he made a gesture to us with his hand. बिना कोई शब्द बोले उन्होंने अपने हाथ की भाव भंगिमा से दर्शाया। क्या दर्शाया? स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो।
स्कूल की छुट्टी हो गई है, अब आप लोग जा सकते हैं। तो डियर गाइज, it was all about the first lesson. Hope you must have liked it. If you have liked it, please press the like button and do subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon in order to get the notifications of the further videos at the soonest. Thanks for watching. Bye.